بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ گل ود گئی ہے مختاریہ، حکومت دستی نہیں بھئی۔ آپ دیکھیں کہ حکومت کے گرد گھیرا تنگ کس طرح سے ہو رہا ہے۔ متنازع پیکا ترمیمی بل کے خلاف ملک کے مختلف شہروں میں صحافیوں کا احتجاج اور بھوک ہڑتال، اور یہ بھوک ہڑتال بھی ختم نہیں ہو رہی ہے، احتجاج بھی ختم نہیں ہو رہا۔ ابھی تو جناب کل کے حوالے سے بہت بڑی خبر آ گئی ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ بہت بڑی بڑی خبریں ہیں اس وقت، بڑی بڑی خبریں ہیں، امریکہ سے بھی ہیں اور یہاں پر پاکستان سے بھی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بھی بڑی خبر ہے، ایک ایک کر کے سب پر بات کریں گے۔ پہلے تو جناب یہ دیکھیے کہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ سے منسلک ملک بھر کی صحافی تنظیمیں پیکا ترمیمی بل کے خلاف کل پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا دیں گی۔ یہ دیکھیے جی، 14 فروری کے بارے میں پیکا ترمیمی بل نامنظور، چلو اسلام آباد چلو، اور تمام تنظیموں کی طرف سے اب جناب یہ پارلیمنٹ کا گھیراؤ کیا جا رہا ہے، وہاں پر احتجاج کیا جا رہا ہے تمام صحافتی تنظیموں کی طرف سے۔ حال تو اب یہ ہو گیا ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر کی سینیورٹی پر چیف جسٹس کے موقف سے متفق نہیں ہوں۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان وہ بھی یہ بول پڑے ہیں جی، اب یہ حال ہونا تھا کہ جو سب چیزوں میں پیش رہے وہ کہہ رہے ہیں جی میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ کاشف عباسی صاحب کو جبری رخصت پر بھیجا گیا۔ اب اس کے بعد محمد مالک صاحب کے حوالے سے فواد چودھری نے کچھ کہہ دیا ہے، میں آپ کو سنوانا چاہ رہا ہوں۔ Why is Justice Dogar so controversial? کیا کا کوئی بیک گراؤنڈ مشکوک ہے؟ اب یہ بیک گراؤنڈ یار وائی پہ بتا کے ایک بندے کو تو سے پہلے اٹواتا ہے کاشف عباسی نے، ہم جناب نے بھی جانا ہے تو پھر کچھ لوگ اچھا دونوں کے سوال یہ تھا کہ یہ کیا ڈوگر صاحب کنٹروورشل کیوں ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ Why is Justice Dogar so controversial? کیا کا کوئی بیک گراؤنڈ مشکوک ہے؟ اب یہ بیک گراؤنڈ یار وائی پہ بتا کے ایک بندے کو تو سے پہلے اٹواتا ہے کاشف عباسی نے، ہم جناب نے بھی جانا ہے تو پھر کچھ لوگ اچھا دونوں کٹھے ویکیشن سے لے سکتے سانو تو اگلے باہر نہیں جان دے رہے، کہہ رہے ہیں ہمیں تو باہر بھی نہیں جانے دے رہے، چھٹی چلے جاؤ گے، کہہ رہے ہیں ہمیں تو باہر نہیں جانے دے رہے، آپ زیادہ سے زیادہ چھٹی پر چلے جائیں گے۔ یہ اس ملک میں صحافت کا حال ہو گیا ہے، تو پھر احتجاج نہ ہو تو کیا ہو۔ ابھی یہ پیکا ایکٹ آپ دیکھیں کہ ضرورت ہی نہیں ہے اس کی، ویسے ہی بندہ ادھر ادھر کر دو۔ پیکا کے ساتھ کیا 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 جائے گا، جب وہ آ جائے گا تو پھر ایک نیکسٹ لیول کا معاملہ جو ہے وہ چھیڑ دیا جائے گا۔ تنخواہ دار طبقے کی آمدنی سے 100 ارب روپے زائد انکم ٹیکس وصول کیا گیا۔ جو پہلے پسا ہوا طبقہ ہے اسے 100 ارب روپے اور ٹیکس لے لیا گیا ہے۔ رواں والی سال کے پہلے 7 ماہ میں تنخواہ دار طبقے نے 285 ارب روپے ٹیکس ادا کیا۔ وزیر مملکت خزانہ کے مطابق تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا بوجھ اس کی استطاعت سے باہر ہو گیا ہے۔ یہ ایکسپریس ٹریبیون میں شہباز رانا نے یہ خبر دی ہے جی۔ اچھا، ایک ٹویٹ ایسی ہے جو بڑی وائرل ہو رہی ہے اور اس پر بہت زیادہ صحافی بات کر رہے ہیں، وہ ہے ہاشم ڈوگر صاحب، جو کہ استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے تھے، کرنل ریٹائرڈ ہیں، کرنل ریٹائرڈ۔ انہوں نے لکھا حالیہ تاریخ میں ملک میں جو جتنا نقصان جنرل ندیم انجم سابق ڈی جی ISI نے پہنچایا ہے وہ کسی نے بھی نہیں کیا۔ اب صحافی لکھتے ہیں اس پر احمد بڑائچ، دوپہر کے 12 بج گئے، ابھی تک ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں ہوئی، لگتا ہے کرنل صاحب ابھی تک سو رہے ہیں۔ نوٹ، کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر PTI کے سابق وزیر داخلہ پنجاب تھے، بعد میں استحکام پارٹی میں شامل ہو گئے۔ وہ کہہ رہے جی سب سے زیادہ نقصان اس ملک کو ندیم انجم نے پہنچایا ہے، سابق ڈی جی ISI نے، اور مختلف لوگ یہ کوٹ کر رہے ہیں۔ اب آجئے مریم نواز صاحبہ پر۔ کیا انہوں نے، مریم نواز صاحبہ نے، انہوں نے دھی رانیوں کا ایک پروگرام شروع کیا کہ جی وہ اجتماعی شادیاں، اور مریم نواز جناب 2 لاکھ شاید 6,000 روپے، 2 لاکھ سے زیادہ روپے دے رہی ہیں جہیز میں ہر بچی کو۔ اور وہ چونا کس طرح لگا، منا بھائی فلم یاد آ جاتی ہے، ARY کی رپورٹ دیکھیے۔ نانیوال میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے دھی رانی پروگرام میں انتظامیہ نے دلہنوں کو جہیز کے نام پر چونا لگا دیا۔ رپورٹ کر رہے ساجد خان۔ پنجاب حکومت کی جانب سے گزشتہ روز KPS سکول میں 61 جوڑوں کی اجتماعی شادیاں کرائی گئیں، جن میں ہر دلہن کو مریم نواز کی جانب سے 2,06,000 مالیت کا جہیز کا سامان اور 1 لاکھ روپے دلہن۔ اچھا، 2,06,000 کا کہا جی جہیز کا سامان دے رہے ہیں، اور یہ 60 جوڑوں کی اجتماعی شادی ہے، مریم نواز کی طرف سے یہ سارا جہیز کا سامان دیا گیا۔ آپ سنیے۔ دلہن کو سلامی دی جانی تھی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے دیے جانے والے جہیز کے بیڈ کے ساتھ گدا تک نہیں دیا گیا۔ ظہور آباد سے تعلق رکھنے والی دلہن فروا کے شوہر شبیر نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے شکوہ کیا کہ دلہن کو دیا جانے والا جہیز کا سامان 60,000 روپے سے زیادہ قیمت کا نہیں۔ وہ کہہ رہے جو سامان دیا ہے 2,06,000 کا کہہ کے، وہ تو 60,000 روپے کا بھی نہیں ہے، 60,000 سے زیادہ کا نہیں ہے۔ اور وہ سن لیجیے ARY پہ رپورٹ چلی ہے۔ شادی کرائی ہے ساڈی جی،
2 ਲੱਖ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਆਖਿਆ ਨੇ ਜੀ 30 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਣੀ ਦਾ ਆਖਿਆ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਸਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਗੱਦਾ ਵੀ ਜੀ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆਖਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ नहीं जी। जैसे 60-70 हजार से ज्यादा का सामान ही नहीं है। मुजम्मल साहब ने साडी रिक्वेस्ट है जी अगर कराई जाए तो सामान तो पूरा दे दे बिना शहरियों का कहना है अब ये किया ही है तो सामान तो पूरा दे दे, कोई ठीक दे दे, कोई ऐलान जो किए हैं उनके मुताबिक तो कर दें। पंजाब हुकूमत को धीरानी प्रोग्राम के तहत होने वाली शादियों में वादे के मुताबिक 2,06,000 मालियत का जहेज का सामान हर दुल्हन को देना चाहिए था। कैमरामैन मोहम्मद शफीक के हमरा साजिद खान, ARY न्यूज खानेवाल। ले जी, ये मैंने आपको पूरी रिपोर्ट दिखा दी है। इस पर हमारी बहन साफी एंकर पर्सन हिंदा पाशा लिखती हैं, भाई सामान 2 लाख का हो या 2,000 का, मैडम तो वहां फोटो बनवाने आई थी, सो बनवाई और चल दी। मसला यह है कि फॉर्म 45 के साथ हेरा फेरी करने की आदत ऐसी पड़ी है, जल्दी कब जान छूटेगी। हर जगह हेरा फेरी। मरीम नवाज कह चुके हैं मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, और फिर खुद ही अरबों रुपए की जायदादें निकल आती हैं। ये देखिए, ये बहुत तशवीशनाक खबर है। हुआ ये है कि पाकिस्तान ने लीज पर दिया था जो PIA का कहा जाता है मिल्कियत, रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क में। अब ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ट्रंप हुकूमत ने रोजवेल्ट होटल का मुआहिदा मंसूख कर दिया है। मुआहिदा मंसूख हो गया है। पाकिस्तान ने $220 मिलियन के एवज 3 साल के लिए न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल को होटल लीज पर दिया था। $22 करोड़, $220 मिलियन के एवज 3 साल के लिए। नई वजीर होमलैंड क्रिस्टी न्योम का मुआहिदा खत्म और पैसे वापस लेने का ऐलान। लें जी, अमेरिका ने डॉलर वापस मांग लिए हैं। पाकिस्तान एयरलाइंस का रोजवेल्ट होटल 3 साल की लीज पर न्यूयॉर्क शहर के हवाले किया गया। अब सेक्रेटरी क्रिस्टी न्योम लिखती हैं, I have clawed back the full payment that FEMA deep state activists unilaterally gave to NYC migrant hotels। ले जी, वो उन्होंने ट्वीट भी शेयर कर दी है। दो जी अब $22 करोड़ वापस। उनसे डॉलर लेने क्या थे, उल्टा लेने के देने पड़ गए हैं। जो पहले दिए हुए हैं वो कह रहे हैं वापस दो। अच्छा, इस मामले को किस तरह से भी डन करो और सबको फिलहाल गैर जरूरी बहस मुबाहिसे में उलझा कर रखो, बाकी जब वक्त आएगा देख लेंगे। पाकिस्तान में रजीम चेंज के बाद किए गए तमाम मामला और फैसलों के पीछे वाहिद लॉजिक, वैसे भी आईन और कानून तो सिर्फ बातों किताबों तक है कि बस इनको यूं यूं रखो, मामला किस तरह चलाओ, आगे बढ़ो। जिस तरह चीफ जस्टिस ने कहा है ना, बस सिस्टम चलने दे। अब हर तरफ से ये वाज़ेह सिस्टम चलने दे, लेकिन सिस्टम के तो अपने बंदे। कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर कहते हैं जी, हालिया तारीख में मुल्क को जो नुकसान पहुंचा जनरल नदीम अंजुम साबिक DJI ने पहुंचाया, वो किसी ने भी नहीं किया। अब इस पर रिजवान गलजई साफियां लिखते हैं, कोई नई बात बताएं, ये सबको पता है। अच्छा अकबर बाजवा एंकर पर्सन GN पे प्रोग्राम करते हैं। 2 दिन गुजर गए, अब तक रियासत हाय इस्लामी पाकिस्तान की तरफ से बैरूनी नासिर के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की इजाजत नहीं देंगे वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, क्योंकि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान आया कि IMF ने चीफ जस्टिस से मुलाकात का वक्त मांगा, चीफ जस्टिस ने वक्त दे दिया। लो जी, IMF ने वक्त मांगा, उन्होंने वक्त दे दिया, कहानी खत्म। ये हो रहा है जी। अब सूरत हाल इतनी खतरनाक है कि अमेरिका में पॉल कपूर, scholar of South Asian security, has been nominated by President Trump to succeed Donald Lu at state. Like others already in the administration, Kapoor is a strong backer of US-India partnership. वो सारे बंदे वो ला रहा है जो, यानी इंडिया लॉबिंग जो है वो स्ट्रांग होती जा रही है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में। खैर जी, यहाँ पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो अपनी ही अवाम के खिलाफ लॉबिंग जो है बस उसी पे लगी हुई है। अज़मा बुखारी साहिबा को जवाब दिया है मुज़म्मिल असलम साहब ने, मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा ने। अज़म बुखारी साहब ने लिखा, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को कॉपी करने पे शाबाश, यही तरीका है, अक्ल नहीं तो नकल ही कर लो, जारी रखो, पंजाब के वज़ीर आला को फॉलो करो ताकि खैबर पख्तूनख्वा के मुकद्दर भी बदल सके। यानी ये जो भी मैंने ARY की रिपोर्ट दिखाई है, इसको भी अली बिन गिड्डापुर साहब फॉलो कर लें। 2,06,000 का सामान कह के 60-70 हज़ार का दें, फोटो बनवाएं और जाएं। असल में इन्होंने लिखा है कि जी रमजान पैकेज के तहत मुस्तहिक घरानों को 10-10 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। अली बिन गंडापुर ने जब ये ऐलान किया, इस पर अजबर साहब ने कहा ये हमारी आप कॉपी कर रहे हैं मरीम नवाज की। इस पर मुज़म्मिल इस्लाम लिखते हैं, हमारे लिए हमें फिक्र होगा जिस दिन हम अंडर ट्रेनिंग वज़ीर आला को कॉपी करना पड़े। आपको अंदाजा नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 1 साल पहले भी 10,000 फी खानदान दिया था और आप लोगों ने एक्सपायर राशन का 3,500 का थैला दिया था, जिसकी मार्केट कीमत 2,000 रुपए भी नहीं थी। यानी इनके मुताबिक वही काम जो भी धीरानी प्रोग्राम में हुआ है, ये पहले भी राशन में हो चुका है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी कहते हैं, आर्मी चीफ को लिखे खतूत का जवाब इसलिए नहीं आ रहा कि हमारा पोस्टल बाजार कमजोर है। इमरान खान को चाहिए कि वो अपना खत आर्मी चीफ को बजरिया रजिस्टर्ड पोस्ट यानी
एक्नॉलेजमेंट ड्यू के साथ थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करके भिजवाएं ताकि पता चले कि दूसरी तरफ खत मौसूल हुआ या वसूल करने वाले ने इनकार किया। इमरान खान ने अगर खत ही लिखना है तो अवाम के नाम लिखे, मैं आर्मी चीफ को खत लिखने की के अमल को सपोर्ट नहीं करता। ये शाहिद खान अब्बासी कह रहे हैं, अब ये ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बन चुके हैं। दीगर खबरों में जस्टिस सरफराज डोगर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट तैनात हो गए। हाफिजाबाद में फायरिंग से पीटीआई के मकामी रहनुमा जाँ बहक, बड़ी अफसोसनाक खबर है। तहरीक इंसाफ के पहले भी कई लोगों को इस तरह से निशाना बनाया गया है, जाँ बहक हुए हैं, कत्ल किए गए हैं। अब हाफिजाबाद में फायरिंग से पीटीआई के मकामी रहनुमा कमर जावेद एडवोकेट जाँ बहक हुए। पुलिस के मुताबिक यह वाक़या हाफिजाबाद के इलाके कोट नक्का में पेश आया, जहां नामालूम मुल्जिमान ने पीटीआई के मकामी रहनुमा कमर जावेद को फायरिंग का निशाना बनाया, जिससे वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए। पुलिस ने बताया कि कमर जावेद एडवोकेट को नमाज फजर के लिए मस्जिद जाते हुए फायरिंग का निशाना बनाया गया और मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। अस्तगफिरुल्लाह, यानी फजर की नमाज के लिए जा रहे थे, उस वक्त उनको कत्ल किया गया है। पुलिस के मुताबिक मकतूल कमर जावेद एडवोकेट गुज़श्ता इंतखाबात में पीटीआई के सूबाई उम्मीदवार थे, यानी इतने हम थे कि सूबाई उम्मीदवार भी थे एमपीए के। अब ये खबर हर तरफ लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकरीब हलफ बर्दारी ही मुलतवी करनी पड़ गई, क्योंकि वो कहते थे जी नोटिफिकेशन रात लेट आया इसलिए। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की वज़ीर आज़म हाउस आमद, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अब सारी खबरें उस तरफ होंगी, कहेंगे जी और कोई बात ना करें, अभी तैयब एर्दोगान आ रहे हैं, अब ये हो रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, फलां करें एहतजाज ना करें, लेकिन साफी तो आ रहे हैं जी, वो घेराव करेंगे। आपने तो उनकी सांसें बंद करने की अब कोशिश की है, भूख हड़ताल भी चल रही है, पार्लियामेंट का घेराव भी होगा और हो सकता है पुलिस एक्शन फिर करने की कोशिश की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और दीगर जजों के एजाज में इशाइया, 5 जजों की अदम शिरकत, कि ये हम शिरकत ही नहीं करते। ये वो जज है जिन्होंने रिप्रेजेंटेशन भेजी कि ये आप क्या कर रहे हैं, कहां से बंदे लाके किस तरह भर्ती कर रहे हैं जज, ये नहीं होना चाहिए। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस गुल हसन के एजाज में इशाइया, प्रेजेंटेशन भिजवाने वाले 5 जजेस शरीक ना हुए। तो ये तो अब जनाब जज तो डट गए हैं और ये चाह रहे हैं कि धमकी दें और इनको कहें जी तुम्हारे खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में हम ले जाएंगे, ये वो जाएंगे। जज डट जाए ना जी, एक भी बाज़मीर शख्स हो, एक दिलेर आदमी होना, वो भी बहुत फर्क डालता है। ये कोई ना सोचे कि जी एक से क्या हो जाता है, ये तो फिर भी एक से कहीं ज्यादा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच की कॉज लिस्ट मंसूख की गई है। तैयब एर्दोगान वज़ीर आज़म पहुंचे, फकीरुल मिसाल इस्तकबाल हुआ। अब ये जो 2 रुकनी कॉज लिस्ट मंसूख की है, इस पर कुछ कह रहे हैं जी चीफ जस्टिस अकेले बैठा करेंगे शायद, और वो ऐसी तैसी फिरेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में बेंच 2 अब बेंच 1 में केसेस की समाअत करेगा। अच्छा, और इसमें कहा जा रहा है चीफ जस्टिस अफरीदी, जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल बेंच के सामने 40 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर थे। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में बेंच 2 अब बेंच 1 में केसेस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस अफरीदी आज चैम्बर वर्क करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकरीब हल्फ बर्दारी का शेड्यूल तब्दील, नए जजेस की तकरीब हल्फ बर्दारी अब जुम्मे को होगी और अब ये चीजें आगे जा रही हैं जी, क्योंकि कहा जा रहा है जी वो नोटिफिकेशन जरा लेट हो गया था इस वजह से। इसके अलावा अवामी मसाइल चूंकि बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन हुकूमत कहती है जी हमने बड़ा आला काम किया है, बड़ा कंट्रोल कर लिया है। लेकिन अब जो टोल टैक्स बढ़ाया गया है उस पर भी अदालत ने नोटिस कर दिए हैं। तो महंगाई हर तरफ है, खुद टोल टैक्स, हर तरफ से महंगाई हो रही है और हुकूमत कह रही है हमने महंगाई कंट्रोल कर ली है। आप अंदाजा लगाइए, खुद टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, तनख्वाहदार तबका अलग से परेशान है, लेकिन क्या जी महंगाई कंट्रोल हो गई है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।